Hello students, today we are going to start with our batch of SFM CMA final. Now this subject, in my opinion, this is very interesting, but for certain students there is certain misconceptions that this is very difficult. I agree that this is bit mathematical है, this is agreed, but difficult है, this is I don't agree. ठीक है, but before starting with uh, our batch, I first introduce myself. I'm CA Akshadeep Srivastava and I'm having a teaching experience of more than 20 years, and I have taught more than 50,000 students over a period of time. A lot of CMA students, they have done the live batch with me, they have taken the pen drives and the other medium. A lot of CMA students, they have done this subject, SFM, Strategic Financial Management, with me. Earlier it was Financial Management, AFM. Now when it comes to this subject, what we need, few things that we will be needing here, few things like some basic concepts of the financial management of the intermediate level should be clear. And today we will be starting with the basic introduction of the subject, ये कैसे पढ़ना है, कैसे इसके लिए preparation करनी चाहिए. All these things we are going to discuss today, and we will be preparing a strategy how the subject should be approached. Look, at final level nobody can guarantee that you will pass or not, but I can guarantee one thing, that you will be having the confidence after doing this batch that you will be able to score. I can't guarantee you marks, but I can guarantee the confidence, and in my opinion the confidence is the most important thing for any subject. So what we have to do? Look, first thing, don't have fear, because if you are fearful, half of the battle is lost. If you are confident, half of the battle is won. So the first thing that we need to have here is that we should remove the fear, and I'm confident that even during the batch most of you will not be having the fear for this subject, even though it is a bit mathematical. Now this subject is interesting, it is very interesting subject, and we'll be talking about the stock market, derivative markets, debt markets, other things that will be discussed here. We'll be talking about these things today itself कि हमारे को क्या क्या इसमें पढ़ना है. ठीक है. Now, so look, whenever you are approaching any subject, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे होते हैं तो हमारे पास में दो अप्रोचेस होते हैं. व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक द कॉस्टिंग, यू आर गोइंग टू बिकम अ कॉस्ट मैनेजमेंट, सो द कॉस्टिंग इज द प्राइम सब्जेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस we are having the financial reporting, corporate financial reporting, we are having this strategic financial management. These are main practical subjects that we are having. अब यहाँ पे हमारे को क्या करना होगा, इसमें हमारे को क्या करना होगा, how we'll have to approach any of the practical subject. There are two ways of approaching any of the practical subject. One is remember the concepts, do a lot of practice, remember the problems as well as the solution. मतलब इतनी बार प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि वो याद हो गई, और जब वो याद हो गई और वही सेम प्रॉब्लम या सिमिलर प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आया तो बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व हो गए. This is the kind of thing that people may do. ठीक है, but in my opinion this is the difficult approach. ऐसा कोई भी टॉपिक है उसमें 50 प्रॉब्लम सॉल्व करे, 100 प्रॉब्लम सॉल्व करे, 150 सॉल्व करे, याद कर लिए उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस. ठीक है, बट 100 प्रॉब्लम सॉल्व करे, 100 प्रॉब्लम्स याद कर लिए,
101st प्रॉब्लम आया, बिल्कुल हवा ही नहीं लगेगी कि क्या हो गया, ठीक है। एंड व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज टू डू, इंस्टीट्यूट को यहाँ पे करना क्या है, उसको थोड़े से ही, बिकॉज इन आवर सिलेबस वी आर हैविंग ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सो उसको तो थोड़े ही क्वेश्चंस नए ढूंढ के लाने हैं। इंस्टीट्यूट नॉर्मली ऐसा करता नहीं है कि बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आए। नॉर्मली द अप्रोच ऑफ द इंस्टीट्यूट इज कि दैट most of the students they should be able to solve at least 50 to 60% of the paper without much of the difficulty। मतलब लगभग पास होने का जुगाड़ वो हर किसी के लिए बना के देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग फेल होते नहीं हैं, लोग फेल भी होते ही है। ज्यादातर लोग तो फेल ही होते हैं ना, पास होने वाले तो कम ही होते हैं। सो what is needed here is कि हमारे को अब द सेकेंड अप्रोच, तो हम क्या बात कर रहे थे, फर्स्ट अप्रोच तो क्या है, वन इज कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस याद करें, कंसेप्ट्स को मगअप करें। द सेकेंड अप्रोच इज कि हम चीजों को समझ के लें, वी गो फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जब हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जाते हैं तो कंसेप्ट समझने में हमारे को ज्यादा टाइम लगता है, बट उसके बाद में हमारे को प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो रादर देन सॉल्विंग एंड रिमेंबरिंग 100 प्रॉब्लम्स, 150 प्रॉब्लम्स, वी कैन मैनेज विद 15, 20, 30, 40 different kind of problems. And if we understand those 30, 40, 50 problems conceptually, then on the basis of that we can solve hundreds of problems or even thousands of problems. That is not an issue. Is this point clear? So what is needed is कि जो हमारी अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच कैसा होगा, वो हम अप्रोच को कैसा रखेंगे उसमें कि हम चीजों को कंसेप्चुअली समझेंगे। इवन जो फॉर्मूलेज हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो फॉर्मूला वहां पे उसी फॉर्म में वैसा ही क्यों है। अदर थिंग हियर, लुक, कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ चीजें तो याद रखनी ही पड़ती हैं। इस सब्जेक्ट में देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलेज, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 100 फॉर्मूलेज तो यहाँ पे होंगे लगभग, ठीक है। अब वो फॉर्मूलेज तो याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूलेज हम क्लास में भी याद करने की कोशिश करेंगे, हम तरीके भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उस फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए। बट अगर हमें ये पता है कि वो फॉर्मूला आया कैसे, देन इट इज इजी टू रिमेंबर। याद तो फिर भी रखना पड़ता है, इट्स इजियर comparatively, it is very easy to remember that formula. Is this point clear? So what we are going to follow here is, in our batch we are going to follow the second approach, that is the conceptual approach. We are going for conceptual clarity here, और जितनी ज्यादा conceptual clarity होगी it will be easier for you in exam. Look, I always tell one story, means that is how to learn how to ride the bicycle, learning how to ride the bicycle, ठीक है। अब साइकिल चलाना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साइकिल की जरूरत होगी, साथ में हमारे को वो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज वन अप्रोच, ठीक है। चोटें लगेंगी, तकलीफ हो सकती है, बट एक बार अगर साइकिल चलाना सीख गए, देन यू हैव लर्नड इट फॉर द लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए सीखे। उसकी जगह दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच है कि एक बुक उठाई, हाउ टू राइड द बाइसिकल, उसमें स्टेप लिखे थे कि एक साइकिल खरीदो, साइकिल खरीद ली, फिर उसको स्टैंड से निकाल लिया, उसका हैंडल पकड़ो, फिर एक पैडल पे पैर रखो, फिर दूसरा पैर जो है दूसरी साइड पे लेके जाओ, सीट पे बैठ जाओ एंड बैलेंस करते हुए साइकिल को चलाओ,
ठीक, इतने स्टेप्स में हमने साइकिल चलानी उस बुक के हिसाब से सीख ली। नॉर्मली एग्जाम में क्या पूछा जाता है, राइट द स्टेप्स हाउ टू राइड द बाइसिकल, ठीक है, ठीक, नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है। बट अगर उन्होंने स्टेप्स लिखने की जगह उन्होंने ये बोला कि साइकिल चला के दिखाओ, तो साइकिल तो कभी पकड़ के ही नहीं देखी, साइकिल पे तो कभी बैठे ही नहीं, तो साइकिल तो चलेगी ही नहीं। और यही डिफरेंस होता है इजी और डिफिकल्ट पेपर का। मोस्ट ऑफ द पेपर्स नॉर्मली, ज्यादातर जो पेपर्स इजी होते हैं उसमें क्वेश्चन आता है राइट द स्टेप्स हाउ टू राइड द बाइसिकल, पर जो डिफिकल्ट पेपर आता है उसमें क्वेश्चन होता है राइड द बाइसिकल, शो एंड राइड द बाइसिकल, ठीक है, स्टेप्स नहीं लिखवा रहे, वो साइकिल चला के वो देखना चाहता है एग्जामिनर कि तुम्हारे को साइकिल चलानी आती है कि नहीं आती, और यहीं पे ही सारा खेल खत्म हो जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो हमारे को उस पेपर की तैयारी करनी है जहां पे वो हमारे से साइकिल चलवा के देखना चाहते हैं कि हमें साइकिल चलानी आती है कि नहीं आती। अगर साइकिल चलानी आती है इट इज गुड, नहीं तो ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, सो पेपर लोग सीएमए इंस्टीट्यूट बहुत सिस्टमेटिकली सिलेबस डिजाइन करता है, ठीक है। सो हाउ दैट सिलेबस इज डिजाइन, जो हमारा सिलेबस है उसको उन्होंने बेसिक 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें जो हमारा ए पार्ट है वो क्या है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसका वेट है 25%। एग्जैक्टली 25% होगा ऐसा नहीं बोल सकते, बट अप्रोक्सीमेटली 2-4 मार्क्स इधर उधर होते हैं, but approximately you will be having 25% of the questions coming from the investment decision. Then the second segment, financial market and institutions. Then the third segment, that is security analysis and portfolio management. And then the financial risk management. Look, these days one of the hot areas for specialization is risk management. जिसके पास में जितनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो उतना कम रिस्क लेना चाहता है, अर्न तो करना चाहता है हर कोई, ठीक है। अब सोच के देखो, दिस इज द टाइम, ये कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, लाइक एवरीबडी नोज कि सबके लिए रिस्क है, एंड दैट इज व्हाई द ऑनलाइन क्लासेस दे आर फ्लोरिशिंग, ठीक। सो अब यहाँ पे रिस्क तो सबके लिए है, जो घर से बाहर निकलेगा उसके लिए रिस्क है, ठीक। नाउ उसमें से कुछ लोगों के लिए ज्यादा रिस्क है, कुछ लोगों के लिए कम रिस्क है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं व्हेन इट कम्स टू, चलो उसमें आएंगे फिर थोड़ा सा इस पे, अब क्योंकि बोलना शुरू कर दिया है। सो रिस्क में पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है कि रिस्क आखिर में है क्या, रिस्क क्या है। अब हम यहाँ पे कोरोना की रिस्क नहीं पढ़ेंगे, कोरोना से, हाँ कोरोना से भी रिस्क है। कोरोना से 2 तरीके की रिस्क है, वन इज द रिस्क ऑफ द हेल्थ एंड अनदर इज द फाइनेंशियल रिस्क अराइजिंग बिकॉज ऑफ द कोरोना। अब किसी की अगर जॉब छूट जाती है बिकॉज ऑफ द कोरोना, सो उसके लिए तो रिस्क हुआ ना, फाइनेंशियल रिस्क हुई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, दैट वी विल बी स्टडीइंग द फाइनेंशियल रिस्क एंड उसका मैनेजमेंट। तो हम रिस्क समझेंगे, उसको मैनेज कैसे करना है ये भी समझेंगे, ठीक है। नाउ जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, सो अब यहाँ पे अगर हम देखें सो कितना आया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 25%, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सिग्निफिकेंट यहाँ पे थ्योरी है, दिस इज 20%, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दिस इज 25%। इसमें जो ए, सी एंड डी है, दीज आर मोस्टली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से थ्योरी
आती नहीं है या आ नहीं सकती है, बट यहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब यहां जो इंस्टीट्यूट हमारे से एक्सपेक्ट करता है कि व्हेन वी आर अपीयरिंग फॉर एसएफएम पेपर, जब हम एसएफएम के पेपर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे दैट एवरीबडी नोज, बट एक बार जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। पेपर हमारा कितने घंटे का होता है? 3 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है। एंड इन दैट 3 आवर्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हमारे से एक्सपेक्टेड क्या है? इंस्टीट्यूट हमारे से 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज एक्सपेक्ट करता है। जब हम फाउंडेशन में थे तो हमारे को वहां पे बेसिक नॉलेज चाहिए थी, ठीक है। जब हम इंटरमीडिएट में पहुंचे तो को वर्किंग नॉलेज, तो वहां पे इंटरमीडिएट में हमारे को ज्यादातर सब्जेक्ट्स में हमारे को वर्किंग नॉलेज मतलब काम चलाऊ नॉलेज होनी चाहिए। बट व्हेन वी रीच टू द फाइनल्स, तो ज्यादातर सब्जेक्ट्स में हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। अब तो फाइनल आ गया, अब तो हम कॉस्ट मैनेजर सीए में बन जाएंगे, ठीक है। सो अब हमारे को जॉब के लिए रेडी होना है, एंड वी आर सपोज टू बी एक्सपर्ट इन आवर फील्ड। सो ज्यादातर चीजों में हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगी? एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, अब यहाँ पे चीजें आती हैं कि वो किस तरीके की किस चीजों में ये एक्सपर्ट नॉलेज हमारे को चाहिए, ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, रिस्क के बारे में, ये अब हम आगे आ जाते हैं, एक सेक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें वो डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। नाउ जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका वेट कितना होगा? इट इज 25%। एंड वन थिंग कीप इन माइंड कि जो हमारा पेपर है, पेपर इज 116 मार्क्स। पेपर होता 100 मार्क्स, बट एक क्वेश्चन की चॉइस है ना। सो अल्टीमेटली हमारे पास में पेपर आता 116 मार्क्स का। सो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एरिया हमारे को ज्यादा पसंद है, तो हम उसके क्वेश्चंस चॉइस के हिसाब से हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ जो हमारा फर्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज कैपिटल बजटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। अब कैपिटल बजटिंग, अब बजट हम कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं, बजटरी कंट्रोल। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, दिस इज our very important function, because we are not normal accountant, we are management accountant। cost CMA कोर्स में क्या हो गया? cost and management accounting, ठीक है। so, जो हमारा जो रोल है, that will be more of managerial। Is this point clear? So when it comes to the things here, so यहाँ पे हमारे को क्या चीज इसमें चाहिए होगी कि कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस होता है, उसके लिए जो शुरुआत है, इफ यू रिकॉल जब हमने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था, मोस्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन या फिर जो जिस एग्जाम्पल से शुरुआत हमारी होती थी, वो एग्जाम्पल क्या होता था कि राम ब्रिंग्स 10,000 इनटू बिजनेस, ठीक है। अब वो 10,000 रुपए लेके बिजनेस में आया, ठीक है। तो अब 10,000 से आए, 10 लाख से आए, 10 करोड़ से शुरुआत, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल, तो हम कैश टू कैपिटल की एंट्री करते थे। अब इस कैपिटल से करोगे क्या? इसको, इस कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ना, ठीक है। अब बिजनेस में हमें उस कैपिटल को कहां पे इन्वेस्ट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि ये जो कैपिटल हमारा आया, जो हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया,
इस कैपिटल को हमें प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करना है। तो कहां इन्वेस्ट होना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्टमेंट, कहां इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी जो हमारी स्टडी है दैट इज द कैपिटल बजटिंग, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, सो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है दैट इज द वेरी एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अ इरिवर्सिबल डिसीजन। ये हमारा इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, या फिर हम इसको चेंज भी करेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, इफ यू रिकॉल जब टाटा मोटर्स अपना नैनो का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने जो लोकेशन चूज करी थी दैट वाज सिंगूर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड वो नंदीग्राम वाला एरिया, उसमें दे हैव प्लान्ड टू सेट अप द फैक्ट्री फॉर द नैनो। तो नैनो की जो फैक्ट्री यहाँ पे वो सेटअप कर रहे थे, वो कहाँ पे सेटअप हो रही थी? वेस्ट बंगाल में, सिंगूर में। बट ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल इश्यूज उसमें हुआ क्या, उनको वहां से फैक्ट्री शिफ्ट करनी पड़ी। इंडस्ट्री एस्टिमेट सेज कि वो उस पूरी एक्सरसाइज में टाटा मोटर्स लॉस्ट मोर देन 1000 करोड़। अब ये तो बड़ी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी तो वो दे मैनेज्ड। ठीक है, इसी की जगह अगर कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो कंपनी डूबी गई होती। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो ये जो डिसीजन है कि कहां पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, कब पैसा लगाना है, कब उसे विड्रॉ भी कर लेना है, ये सारा का सारा डिसीजन कहां है, ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, सो जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को मतलब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी, उसकी प्लानिंग करनी होगी, कहाँ कैसे उस प्रोजेक्ट को लेके आना है, ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ठीक है, नाउ हम कॉस्टिंग में भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट है दैट इज बेसिकली द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो हमारे को मैनेजरियल डिसीजंस लेने ही है ना। इज इट क्लियर? तो जो हमारे को मैनेजमेंट डिसीजंस लेने हैं तो उन डिसीजंस को कॉस्टिंग में एक अप्रोच होती है और यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दूसरी अप्रोच होती है। वहाँ पे हम मोस्टली मार्जिनल कॉस्टिंग या प्राइसिंग डिसीजंस ये सब भी यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। हम कॉस्टिंग में फाइनेंशियल कॉस्ट कंसीडर नहीं करते हैं, हम वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करते हैं, हम मोस्टली वहाँ पे प्रॉफिट बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी ऑब्वियसली कंसीडर cost of financing, we also consider time value of money. So when we are taking the decisions here in financial management, then most of our decisions they are based on cash flows. किस पे based है? cash flows पे based होंगे। ठीक है, so अब यहाँ पे हमारे को cash flows कैसे calculate करना है, हमने cash flow statement पढ़ा है या पढ़ोगे। सो यहाँ पे हम ऑब्वियस सी बात है, जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैश फ्लोज कैसे कंप्यूट करने चाहिए, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, सो कैश फ्लोज, फिर उसके बाद में हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इंटरमीडिएट में जब एफएम पढ़ा था, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव डन दैट, अगर किसी ने मीन्स पुराने सिलेबस में इंटरमीडिएट दिया था तो वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट शायद नहीं पढ़ा हो, या फिर हो सकता है कि काफ़ी टाइम गैप हो गया हो तो अब रिकॉल नहीं हो रहे होंगे। सो वन मोर थिंग दैट विल बी डूइंग हियर कि जब मैं शुरुआत करूँगा तो फर्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स। मैं एक बार बेसिक्स रिकैप करवाऊंगा जो तुमने मोस्टली 99% प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही होगा।
बट फिर भी मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ पे शुरुआत करने के लिए what I am going to do, I am going to start again with those basics. जो काम की चीजें हैं वहां से I will recap in 2 to 3 lectures. 2 से 3 लेक्चर के बीच में I will recap these things. ठीक है, हम उनके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक बार उन सब चीजों को रिकैप कर लेंगे. ठीक है, थोड़ा सा कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ता है, बट दैट इज एसेंशियल इन माय ओपिनियन, क्योंकि अगर पिछला ही याद नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे थे जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं. सो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस करने जाता है तो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता है, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है. ठीक, सो 2 अप्रोचेस हैं, हमने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े थे. वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अनदर इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, the objectives of the finance manager, there are 2 basic objectives of the finance manager. One is the maximization of profit and another is maximization of wealth. So maximization of profit, it is the objective of the finance manager. किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो है, प्रॉफिट नहीं आया तो हम बिजनेस ही क्यों करेंगे. बट द क्वेश्चन कम्स कि क्या यही हमारा सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सो आंसर इज नो, नहीं. दिस शुड नॉट बी आवर सोल ऑब्जेक्टिव. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हमारा ऑब्जेक्टिव, बेटर ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. लुक, अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि प्रॉफिट क्या है, सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि दिस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. अगर मेरी इनकम मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, बट अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो मेरे को लॉस हो गया. इन अदर वेज यू कैन से दैट दिस इज द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसको लास्ट में जो बैलेंस करते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर है, इधर इट इज अ प्रॉफिट और इट इज अ लॉस. दैट यू कैन से दैट वे आल्सो. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो ऐसे भी हो सकता है या फिर वैसे भी हो सकता है. नाउ अब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है. ठीक है, look, I just tell you one story. Look, when I joined CA, I joined CA after doing BSc. ठीक, अब BSc करके CA क्यों ज्वाइन किया, that is the other thing. फिर किसी और टाइम पे we'll discuss कि क्यों ज्वाइन कर लिया CA. ठीक है, now when I joined CA तो अब BSc करके मैं आया था, and I did after obviously graduation तो हो ही गया, तो BSc हुआ. तो so directly उस टाइम पे आर्टिकलशिप शुरू होती थी. 3 years ऑफ आर्टिकलशिप CA की स्टार्ट हो जाती थी शुरुआत से. नाउ अब वहाँ पे मैं तो BSc करके गया था, मेरे को कुछ अकाउंट कुछ समझना नहीं था, बट ये है कि ज्वाइन कर लिया था. दिक्कत होती थी मेरे को जो ऑफिस में आर्टिकलशिप में जो काम भी मिलता था मैक्सिमम वो ड्राफ्टिंग वाला रहता था, बिकॉज माई इंग्लिश वॉज बेटर एज कम्पेयर टू द अदर आर्टिकल्स. एंड ऑडिट में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ऑडिटिंग में, बट अदरवाइज ठीक है, शुरुआत हो गई थी. पढ़ रहे थे, अकाउंट्स भी पढ़ता था. अब मेरी अकाउंट्स की नॉर्मली शुरुआत कैसे होती थी, एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, बेसिक्स पढ़ता रहता था. ठीक है, मेरा जो प्रिंसिपल था has given me the book of T.S. Grewal. अब इतनी मोटी बुक थी वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद में समझ जाना बंद हो जाता वापस. ठीक, सो व्हाट वाज देयर कि हमारे जो ऑफिस में जो प्रिंसिपल थे उनका एक क्लाइंट था, मतलब फ्रेंड भी था और क्लाइंट भी था. तो अक्सर आ जाता था टाइम पास के लिए. अब उसको भी पता था कि मैं साइंस से, मेरे को बहुत ज़्यादा अकाउंट बहुत ज़्यादा आता नहीं है. ठीक है, तो वो एक दिन उसी की बैलेंस शीट फाइनलाइज हो रही थी, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, मेरा सीनियर था, ही वाज फाइनलाइजिंग हिज अकाउंट्स. अब उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई थिंक 2 लाख 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिखाया था. ठीक, एंड जब बैलेंस शीट बनी, उस बैलेंस शीट में जो कैश दिखाई दे रहा था वो आई थिंक 10 या 20,000 रुपीज था. अब ऐसी उसने मजे लेने के लिए, या हो सकता है जेन्युइनली भी, मेरे को बोला, श्रीवास्तव जी एक चीज बताओ, आप बता रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का, बट मेरे पास तो कैश पड़ा 20,000 रुपए का.
तो बाकी के 1,80,000 गए कहाँ? मेरे पास जो एसेट थे जो पिछली बार थे वही एसेट अभी भी है, जो प्लांट एंड मशीनरी, जो फर्नीचर था, मैंने कुछ नया एसेट नहीं खरीदा। 1,80,000 गए कहाँ? अब मैं भी कंफ्यूज, मेरे को जवाब ही नहीं मिला कि वो 1,80,000 कहाँ चले गए। वो मुस्कुराया, हंसा और चला गया। ठीक, मैं सोचता रहा ये 1,80,000 गए कहाँ? ठीक ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन कम्स, ये डिफरेंस होता क्यों है? नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। जब हमने अकाउंटिंग की शुरुआत करी थी तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बट कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश रियल है बट प्रॉफिट नॉमिनल है। कैश हम काउंट कर सकते हैं, 100 रुपए के, 500 रुपए के, अब 1000 के नोट तो बंद हो गए, सीधा 2000 का काउंट करना पड़ता है। सो हम उसको देख सकते हैं तो वो रियल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल है। देयर इज अ डिफरेंस, प्रॉफिट में और कैश में डिफरेंस है। नॉर्मली आई से कि प्रॉफिट भगवान जैसा है, जो है तो पर दिखता नहीं है। दिखता क्या है? उसका मंदिर दिखता है, मूर्ति दिखती है और पुजारी दिखता है जो कैश काउंट करता है। ठीक, सो भगवान को देखने के लिए हमें कहाँ जाना है तो एक्चुअल में वो सब जगह, बट देखना किस में पड़ता है? मंदिर में जाके, और वहीं से ही आता है कैश। तो जो कैश है वो भगवान के मंदिर या भगवान की मूर्ति जैसा है, जो असली दिख रहा है। ठीक है, ठीक, अब हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे तो यहाँ पे भी भगवान होगा, ठीक, बट अब हमारे को दिख नहीं रहा तो हम कहाँ गए? मंदिर में गए। प्रॉफिट है भगवान जैसा है, होता है, दिखता नहीं। कैश होता भी है, दिखता भी है, यू कैन फील इट। सो कैश इज रियल बट प्रॉफिट इज नॉमिनल। तो जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो प्रिंसिपल है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, जो तुम्हारे P&L में है बट एक्चुअल में तुम्हारे हाथ में है या नहीं है तुम्हें नहीं पता। दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज व्हाई wealth maximization is a superior objective as compared to the profit maximization। ठीक है, चलो फिर अब जब हम बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की, वेस्ट बंगाल सिंगूर में उन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप किया, बंद हो गया, वहां से दे हैव टू शिफ्ट टू गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे मोदी एट दैट टाइम वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो उसने वहां पे उनको काफी कंसेशनल रेट पे 1000 एकर्स ऑफ लैंड टाटा मोटर्स को दिया। दे हैव सेट अप द फैक्ट्री देयर। ठीक है, अब यहाँ पे कैसी सिचुएशन हुई कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पे रिस्क है, सक्सेसफुल भी हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट, नहीं भी हो सकता। तो जब हम इंटरमीडिएट लेवल तक कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं तो हम सिंपल कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं, बट जब हम फाइनल पे आके कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं तो वहां पे एडवांस लेवल पे हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे या इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे एंड उसमें one of the important thing that we have to study is the risk management। प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है, उसको कैसे कंप्यूट करना है और कैसे मैनेज किया जा सकता है। These things we are going to study here also। ठीक है, apart from this we are going to study the leasing decision। ठीक है, so अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो बेसिक वाला कैपिटल बजटिंग, बेसिक में वो इंटरमीडिएट से हायर लेवल होता है, साथ में हमारा रिस्क मैनेजमेंट का आएगा पार्ट, and third one we will be having the leasing decisions। leasing is, हमने अगर AS19 पढ़ा होगा तो लीजिंग दो तरीके की होती थी, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ठीक है, उसमें जो ऑपरेटिंग लीज है दैट इज ऑपरेशनल अरेंजमेंट कि एक स्टूडेंट है, ही कम्स फॉर क्लासेस टू पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, in some big city, coming to for the classes and he is taking the a room for on rent। ठीक है, 6 months 1 year के लिए एक रेंट पे लिया। तो अब यहाँ पे इंटेंट क्या है उस स्टूडेंट की
क्या उस रूम को, उस घर को खरीदने की इंटेंशन है? नहीं है, सिर्फ यूज करने की इंटेंशन है। सो ये जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग अरेंजमेंट, और इस तरीके की लीज को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। ये तो नॉन बिजनेस पर्पस था। ऐसे ही बिजनेस पर्पस के लिए मैंने एक शॉप रेंट पे ली 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए, या एक मशीन रेंट पे ली 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर के लिए अगर रेंट पे ली, तो मेरा ऑपरेशनल अरेंजमेंट है। मैं उसको, मशीन को, उस शॉप को खरीदना नहीं चाहता, मेरी इच्छा सिर्फ उसको यूज करने की है। बट देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। बेसिकली इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ बोरोइंग। अब यहाँ पे कैसा होता है, एक मशीन है, मशीन से 1 करोड़ रुपीस की है। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपीस नहीं है, मैं वो मशीन खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस मशीन के लिए बैंक से लोन लेके उस मशीन को खरीद सकता हूँ। दिस इज वन वे। अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग इज दैट आई टेक द सेम मशीन ऑन फाइनेंस लीज। अगर तुमने एनबीएफसी पढ़ा होगा, एनबीएफसी इज व्हाट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनमें एक कैटेगरी है लीजिंग एंड हायर परचेज कंपनीज। तो जो लीजिंग एंड हायर परचेज है, दैट लीजिंग एंड हायर परचेज इज द कैटेगरी जो कंपनीज, जो एनबीएफसीज एसेट्स को खरीद के दूसरों को लीज पे देने का काम करते हैं, ठीक है। एंड इस लीजिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को वो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए, वो हम समझेंगे। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। वहां पे कंडीशंस जो हमारी होती थी S19 में, एसेट इज गिवन ऑन लीज सब्सटेंशियली फॉर होल ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। सब्सटेंशियली फॉर होल ऑफ लाइफ ऑफ एसेट मींस से 70-80% 10 इयर्स का लाइफ है, 7 ईयर्स 8 ईयर्स के लिए लीज पे दिया हुआ है। सेकंड इज रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड। एंड थर्ड कंडीशन that lessee may have the option to purchase the asset at the end of the lease period at a price which is significantly lower than the fair value of the asset। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो ये फाइनेंस लीज, नहीं हुई तो ऑपरेटिंग लीज। अब जो हमारा इंड AS 116 है वो ऑपरेटिंग लीज की बात ही नहीं करता लेसी के लिए, वो सिर्फ फाइनेंस लीज जैसी ही अकाउंटिंग करवाता है, ठीक है। वो अलग चीज है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट जब हम यहाँ भी करेंगे तो थोड़ा सा तो डिस्कशन में आ ही जाएंगी चीजें। तो अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, इसमें मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं एंड थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली पेपर डिफिकल्ट है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो पेपर हमारे लिए आसान होगा, भले ही सबके लिए डिफिकल्ट क्यों ना। इज इट क्लियर नाउ? अब इसमें जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ते हैं, इसमें हमारे को क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, यही तो डिसीजन है। तो जो भी हम कैश फ्लोज की बात कर रहे होंगे वो सब कौन से कैश फ्लोज होंगे, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज। कैसे कैश फ्लोज हो गए, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज हो गए वो हमारे, ठीक है। देन फिर इसके बाद में हम कॉस्ट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, कि जितना हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो करना क्या एप्रोप्रिएट है या नहीं है, या हम कॉस्टिंग में भी ये डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। मेक और बाई के डिसीजंस, ये खुद से बनाना है या किसी और से खरीद लेना है, इस तरीके के भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है। सो लुक, ये जो कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है दैट इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। हमने जब हम कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी रिलेवेंट और इररिलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट आता है। कोई कॉस्ट रिलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, कुछ कॉस्ट रिलेवेंट नहीं होती हैं। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती हैं, दोज कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन डिसीजन। मैं अगर अपने डिसीजन को बदलता हूं तो डिसीजन के बदलने के साथ में अगर मेरी
वो कॉस्ट बदल जाती है, देन वी कैन से कि वो हमारी रिलेवेंट कॉस्ट है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक ऑफिस है, या तो मेरा खुद का ऑफिस है या रेंट पे लिया हुआ है। नाउ आई एम डिसाइडिंग अबाउट वेदर टू स्टार्ट माय प्रैक्टिस देयर और टू स्टार्ट माय क्लासेस देयर। मेरे पास में डिसीजन क्या है, दो में से मेरे को एक चॉइस करनी है कि या तो मैं वहां पे उस ऑफिस में उस प्रीमाइसेस में या तो मैं अपनी क्लासेस शुरू करूं या मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूं। तो अब उस केस में सपोज वो अगर रेंट पे है ऑफिस, तो रेंट तो दोनों केस में सेम रहेगा ना। तो क्या वहां पे रेंट रिलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग? आंसर इज नो, रेंट इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। वहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि मेरे कैश फ्लो प्रैक्टिस से कितने रहेंगे एंड मेरे कैश फ्लोज क्लासेस से कितने रहेंगे, ठीक है। सो ये जो चीज है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देयर, ठीक है। सो रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट का डिसीजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंसेप्ट यहाँ पे कॉस्टिंग से ही आता है, सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो हमने कॉस्टिंग में रिलेवेंट इररिलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है। इट इज द सेम कंसेप्ट हियर ऑल्सो एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे समझना पड़ेगा। देन अब यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं तो दो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं डिसीजन मेकिंग की। एक डीसीएफ अप्रोच, डीसीएफ मींस डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। कौन सी अप्रोच? डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। एंड अनदर अप्रोच इज नॉन डीसीएफ अप्रोच, ठीक है। एक तो हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, या फिर हम बिना कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग के डिसीजन लेते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है हमें कि कैपिटल बजटिंग में जो डिसीजंस होंगे वो कैश फ्लो पे ही बेस्ड होंगे, कॉस्टिंग में जो डिसीजन होंगे वो प्रॉफिट पे बेस्ड होंगे। आया समझ में? डिफरेंस है, क्योंकि हम कॉस्टिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस डिसीजन मेकिंग के टाइम पे इंटरेस्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं करते। दैट पॉइंट इज डिबेटेबल एंड some are in favor of considering it, some are against considering it. but costing में जो prevalent जो idea है या thought process है that we don't consider interest cost or finance cost in decision making in costing, though I am not in favor of that, ठीक। मेरा opinion वहाँ पे थोड़ा सा different है, but valid arguments हैं उसके favor में भी, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिबेट कि उसको किसी और मोमेंट पे हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं अपना पॉइंट रखूंगा, तुम अपना पॉइंट रखना, बट द थिंग इज कि है डिबेटेबल, ठीक है, डिबेटेबल है। आर्ग्यूमेंट आर फॉर एज वेल एज अगेंस्ट। देन कैपिटल रैशनिंग, वन थिंग। अब रैशनिंग क्या होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम राशन की बात करते हैं तो राशन मतलब जो हमारे को राशन की दुकान से जो गेहूं, दाल, चावल, केरोसिन ये मिल रहा है, पीपल कंसीडर इट एज राशन, बट दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ द राशन। द राशन वर्ड इट इज फ्रॉम द रैशनल। क्या होता है ये राशन की दुकान का कंसेप्ट कब शुरू हुआ? लुक, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद में इंडिया में अकाल पड़ा था, ठीक है। सो वहाँ इंडिया में मीन्स बारिश कम हुई, उसकी वजह से जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो बहुत कम था एंड पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज हो रही थी। सो उसकी वजह से क्या हुआ? देयर वाज शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। सो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो अवेलेबल फूड ग्रेन था, अब ऑब्वियसली क्या होगा कि जो अमीर आदमी है जिसके पास पैसा है वो बोरा खरीद के ले आएगा, पूरा का पूरा एक सैक खरीद के लेके आ जाएगा। बट जो गरीब आदमी है उसको तो आधा किलो 1 किलो खरीदने में भी दिक्कत है। सो क्या होगा कि जो अमीर लोग होंगे वो सारा का सारा जो फूड ग्रेन है वो अपने पास ले जाएंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे और गरीब आदमी भूख से मर जाएगा। सो गवर्नमेंट ने एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया
जहां पे तुम गरीब हो या अमीर हो, सबको एक भाव पे और एक क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन मिलेगा। ठीक है, फिर उसमें अब तो क्या है, बीपीएल नॉन बीपीएल कार्ड आ गए। ठीक है, अब क्या है कि जो नॉन बीपीएल वाले हैं उनको राशन नहीं मिलता, मतलब फूड ग्रेन नहीं मिलता। तो राशन है, राशन का मतलब फूड ग्रेन नहीं है। किसी चीज को रैशनली डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट करना, दैट इज कॉल्ड एज रैशनिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो ऐसे ही कैपिटल अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है, सबके पास नहीं है। किसी के पास में 1 लाख रुपए ही है, किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, किसी के पास 1 CR है, किसी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। ठीक है, अब जेफ बेजोस मोर देन $200 बिलियन। ठीक है, अब उसकी जो वेल्थ है वो सिग्निफिकेंटली मींस बहुत सारे कंट्रीज के टोटल जीडीपी से ज्यादा है, वेल्थ ऑफ द 1%, वो भी उसके डिवोर्स के बाद में। ठीक है, अब तो बिल गेट्स का भी डिवोर्स हो गया। नाउ व्हाट इज हियर, हाउ द थिंग्स वी आर गोइंग टू हैव। अब यहाँ पे कैपिटल इज अ स्केर्स रिसोर्स, और ये हो सकता है कि हमारे पास में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। सो इन दैट सिचुएशन, इन विच प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, ये जो डिसीजन है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रैशनिंग। एंड वन मोर थिंग कम्स, दैट इज द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये थियोरेटिकल है, बट हर बिजनेस की एक सोशल कॉस्ट भी होती है। अब से फॉर एग्जांपल, वन पर्सन इज हैविंग अ वाइन बिजनेस, देसी दारू की दुकान, नॉर्मली वो स्लम एरियाज के आसपास ही होता है। अब उसकी वजह से, अब शॉप की वजह से सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। देयर इज अ सोशल कॉस्ट that need to be analyzed. ठीक है, and this is a new concept, relatively new concept, and that also we are going to study here. ठीक है, then इसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम रिस्की प्रपोजल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हमारे को अब क्या होगा, कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो उसमें अनसर्टेनिटीज होंगी, उन अनसर्टेनिटीज में कैसे हमारे को बिजनेस को डील करना है। ठीक है, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्फ्लेशन। Inflation is reduction in purchasing power of currency, or in other words, more money chasing less goods is called as inflation. Inflation का जो primary reason है वो है when governments are printing more currency. अगर हम governments ज़्यादा currency print करते हैं, अब कोरोना पीरियड में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन a stimulus of approximately 20 lakh crore, कहाँ गया, हमें तो मिला नहीं, but that was cash came directly indirectly into circulation, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। Similarly, US has I think they have given stimulus of more than $2 trillion, बहुत बड़ी रकम है, इंडिया के जीडीपी जितना बड़ा रकम है लगभग, इंडिया का जीडीपी ज्यादा है उससे, बट दैट इज द काइंड ऑफ स्टिमुलस दे हैव गिवन। देयर इज एम्पल सप्लाई ऑफ कैश इन द सिस्टम। अब जब सिस्टम में कैश बढ़ गया तो गुड्स तो उतने ही है, जब कैश बढ़ जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, और इन्फ्लेशन की वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे फर्क पड़ता है। मोस्टली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे तो बहुत होता है, गवर्नमेंट का बहुत सारा टाइम तो फालतू की प्लानिंग में चला जाता है। एक फ्लाईओवर बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, आज प्लानिंग शुरू होगी, मंत्री जी आएंगे, रिबन काट के चला जाएंगे, उसके बाद में फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर सरकार बदल गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, अब उनको अपना कॉन्ट्रैक्टर चाहिए क्योंकि पिछले वाले ने तो दूसरे को कमीशन दे दिया, वो वहां पे फिर वापस से रीटेंडरिंग करवाएंगे, ये होगा वो होगा, जो काम 2 साल में कंप्लीट होना था हो सकता है 10 साल से ज्यादा लग जाए।
अब जो कॉस्ट आज एस्टिमेट हुई वो 10 साल बाद भी वैसी ही रहेगी नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से वहां पे डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। Then we are having a lot of other things like sensitivity analysis, certainty equivalent approach, decision tree. ये सब हम करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या क्या होते हैं, that we will be discussing at that time, ठीक है। Now third one is leasing decisions. So जो मेन डिसीजन आता है वो आता है लीज वर्सेस बाय, लेसी के पॉइंट। देयर आर टू पार्टीज इन द लीजिंग, वन इज द पर्सन हु इज गिविंग द एसेट ऑन लीज, दैट इज कॉल्ड एज लेसर। The second person is who is taking the asset on lease. जो asset lease पे ले रहा है that is called as lessee. So कितनी parties हो गई? Two parties are there. One is the lessee and another is lessor. Is it clear? So what happens? जब हम lessee के point of view से सोचते हैं, so there can be two decisions. One is lease और buy. लोन लेके खरीद लो या फिर लीज पे ले लो, ठीक है। Then फिर इसके बाद में वहीं पे ही आता है ब्रेक इवन लीज रेंटल, मतलब कि वो लीज रेंटल जो हमारे बाइंग डिसीजन से ब्रेक इवन करते हैं, मतलब जहां पे दोनों डिसीजंस हमारे सेम हो जाएं, ठीक है। इसी तरीके के क्रॉस बॉर्डर लीजिंग, मतलब इंटरनेशनल, बाहर की कंपनीज से, फॉर एग्जांपल बोइंग इज गिविंग एयरक्राफ्ट ऑन लीज टू इंडियन एयरलाइंस। So in that case, this is a cross border leasing. अब यहाँ पे foreign cash flows involved हो जाएंगे. Is this clear? Then there is one more concept that is called as the sale and lease back. ये हो सकता है कि तुमने इनकम टैक्स में भी पढ़ा हो, वहाँ पे एक ये टैक्स प्लानिंग का भी एक तरीका होता था या टैक्स अवॉइडेंस का, उसमें वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है। बट हम यहाँ पे जेन्युइन सेल एंड लीज बैक डिसीजन की बात कर रहे हैं। सो जो जेन्युइन सेल एंड लीज बैक डिसीजंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई विल एक्सप्लेन कि वो क्या होते हैं, क्यों वहाँ पे वो चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होती हैं। देन ये हमारा सेक्शन ए था, दैट वाज फॉर 25 मार्क्स। नाउ वी कम टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी, दिस इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। अब हमारे मार्केट अलग अलग तरीके के होते हैं। एक कमोडिटी मार्केट, मतलब जो नॉर्मल मार्केट हमारा, ठीक है। एक कमोडिटी मार्केट इधर भी आएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट दिस मोमेंट। एक हमारा जो फिजिकल मार्केट है, गए सामान खरीद के लेके आए, ठीक है। मेरे को कोई सामान से ये रिमोट है, ये रिमोट खरीदना था, मैं गया शॉप पे, मैंने खरीद लिया, ठीक है। नाउ अब ये हमारा जो मार्केट हो गया नॉर्मल, जो ट्रेडिंग वाला जो मार्केट है, जहाँ पे फिजिकल ट्रांजेक्शन्स, फिजिकल गुड्स आर ट्रेडेड। सो this is one market and another is market is that is the financial market. Financial market में अब कौन आएगा? बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, ये भी पार्ट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं इन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो जहाँ हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट the market from where the finance can be arranged, जहां से फाइनेंस को अरेंज किया जा सकता है। that is also the market, उसको हम क्या बोलते हैं? that is called as a financial market, ठीक है। now अब फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंस कैसे अरेंज किया जा सकता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। हमने बॉन्ड्स पढ़े हैं, डिबेंचर्स पढ़े हैं, शेयर्स पढ़े हैं, ठीक है। और आज की डेट में तो बहुत इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं इन द फाइनेंस मार्केट, ठीक है। एडीआर्स, जीडीआर्स, ये सब हमने पढ़े होंगे, ठीक है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में वन ऑफ द मार्केट्स इज कैपिटल मार्केट, जिनको हम स्टॉक मार्केट्स भी बोलते हैं। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट्स। अब चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, बट शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है। एक्चुअल में आज की डेट में वो कम्युनिस्ट कंट्री पॉलिटिकली है, बट इकोनॉमिकली इट इज हाइब्रिड बिटवीन कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम क्या है? वेयर
द फाइनेंशियल एंटिटीज या फिर जो भी बिजनेस एंटिटीज हैं, दे आर स्टेट ओन्ड. एवरीथिंग, एवरी एसेट, बिजनेस और नॉन बिजनेस एसेट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है. जैसे इंडिया में भी है, हमारा भी हाइब्रिड सिस्टम है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज है, लाइक BHEL हो गया, एयर इंडिया हो गया, इवन इंडियन रेलवेज है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है. यूएस में सब प्राइवेटाइज्ड है, रेलवेज, एयरलाइंस, सब बिजनेस प्राइवेट, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती. एक्चुअल में गवर्नमेंट को बिजनेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, रेगुलेटर का होना चाहिए, मतलब अंपायर वाला काम होना चाहिए. और सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब अंपायर खुद प्लेयर बन जाए तो चीटिंग करता है. गवर्नमेंट्स भी करती है, ठीक है. सो या तो सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड हो या फिर कुछ भी स्टेट कंट्रोल्ड नहीं हो, ना कोई भी बिजनेस. हाइब्रिड सिस्टम इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, वट एवर इट इज. उसमें सो जो कैपिटल मार्केट्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. अब कैपिटल मार्केट इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, वन इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. बोथ आर सिचुएटेड इन मुंबई. एंड व्हाट इज हियर कि अब इन जो कैपिटल मार्केट्स हैं, इनमें क्या चीज ट्रेड होती है, शेयर्स, सिक्योरिटीज, और आज की डेट में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज डेरिवेटिव्स. हमारा पूरा चैप्टर है, हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है. देन कमोडिटी एक्सचेंजेस लाइक MCX है, NCDEX है. MCX क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. यहां पे कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है. मोस्टली ये जो MCX में जो ट्रेडिंग हो रही है, दैट इज नॉट डिलीवरी बेस्ड. डिलीवरी हो भी सकती है बट जरूरी नहीं है. Most of the transactions are settled without giving or taking delivery. Is that clear? So what is here कि when it comes to the commodity exchange, ये commodity market से, मतलब इसको commodity market ही बोलते हैं, बट commodity exchange तो हमारी जो मंडी है, मंडी सिस्टम से थोड़ा अलग है. In my opinion, both should be closely linked. तो स्पेकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है. इनको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने के लिए, ठीक है. देन फिर इंस्टीट्यूशंस, अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस. अब इंस्टीट्यूशंस हमारे क्या है फाइनेंशियल मार्केट में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी रेगुलेटर. फिर कमर्शियल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं. पेंशन फंड्स इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है. पेंशन मतलब पेंशन फंड्स हैं, बट पेंशन फंड्स को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है. वो दे आर गोइंग टू गिविंग द परमिशन, ठीक है. अब दैट इज वन ऑफ द रिफॉर्म दैट इज मच नीडेड. एंड अभी तक जो इंडिया में जो पेंशन फंड्स हैं वो GSEC मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी और चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. बिकॉज देयर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो बाहर फॉरेन कंट्रीज के जो पेंशन फंड्स हैं, दे कैन इन्वेस्ट सर्टन अमाउंट ऑफ देयर टोटल फंड इनटू स्टॉक एक्सचेंजेस ऑल्सो. यहाँ पे ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, ठीक है. देन इंस्ट्रूमेंट्स, we are having very diverse kind of instrument in the financial markets, and one of the financial markets that is called as the money market. Money market where the short term debt instruments are traded, call money, treasury bills, commercial papers, promissory notes, CDs means certificate of deposits, बहुत सारे instruments हैं, ठीक है. Then we are having hedge funds basically थोड़े डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेके काम करते हैं. देन वी आर हैविंग म्यूचुअल फंड्स. ये सब जो हैं पार्टिसिपेंट्स ही हैं, लाइक RBI, बैंक्स, ऐसे ही
we are having mutual funds, hedge funds also. They are also the participants in the financial markets. ठीक है. अब इसके बाद में we were having capital markets. अब capital markets दो तरीके के होते हैं. One is the primary market and another is secondary market. You might have heard about the IPOs, initial public offers. IPOs, when the company is issuing the shares for the first time, that is called as IPO, initial public offer. And यही जब शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, मतलब इनकी वापस से ट्रेडिंग होती है. कंपनी तो एक ही बार शेयर इशू करती है, उसके बाद में इनकी रीट्रेडिंग होती है, दैट इज इन द सेकेंडरी मार्केट, जो हमारा शेयर मार्केट है. ठीक है. अब इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इनको हम डिस्कस करेंगे. स्टॉक मार्केट का सेटलमेंट सिस्टम कैसा होता है, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन. जब हम कैपिटल मार्केट्स में आएंगे, विल बी डिस्कसिंग दिस इन डीप. एंड मैं तुम्हारे को यहाँ पे एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करके भी दिखाऊंगा. ठीक है, कि कैसे एक्चुअल मार्केट में ट्रेडिंग करी जाती है. ठीक. Now, after this capital markets को हम डिस्कस करेंगे. Then after this we will be discussing the commodity exchange. Commodity exchange like MCX है, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है. जैसे स्टॉक मार्केट में हमारा रेगुलेटर है सेबी. अब तो एक्चुअल में सेबी जो है कमोडिटी एक्सचेंज का भी रेगुलेटर बन गया है. ठीक है. बट इसका कैसे इसमें ट्रेडिंग होती है, क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कमोडिटी एक्सचेंज हमारा कैसे काम करता है, कैसे उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैसे उसमें सेटलमेंट्स होते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग देयर. ठीक है. फिर कमोडिटी के फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे थे. सो अभी थोड़ा सा और उसको भी डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर दिस नेक्स्ट सेगमेंट, which is 25 marks weightage that we are having, that is the security analysis and portfolio management. This is very important, बहुत important है. and यहाँ पे अब क्या चीजें हमारे को पढ़नी है, इसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे. सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इक्विटी रिसर्च. ठीक है. इसमें क्या क्या होगा. सिक्योरिटी एनालिसिस. सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब शेयर्स, सिक्योरिटीज का एनालिसिस, उसका रिटर्न कितना है, कैसे रिटर्न्स कंप्यूट करते हैं, कैसे रिस्क कंप्यूट करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में हम मार्केट इंडिकेटर्स, मतलब अब यहाँ पे जब सिक्योरिटी एनालिसिस होता है तो अलग अलग तरीके से हैं. फंडामेंटल एनालिसिस होता है, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एनालिसिस होता है. ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीजें हैं. ठीक है. Then we are having market indicators. There is security analysis में fundamental analysis के अलावा एक और चीज आती है, वो आती है technical analysis. वो चार्ट बेस्ड रहता है कि उस मोमेंट पे या उस पीरियड में हम उस चार्ट को एनालाइज करके we try to predict कि हमारा मार्केट में इस शेयर का प्राइस कैसा होने वाला है, क्या चीजें होंगी. ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस, we try to understand. ठीक है. then statistical models हैं for analyzing the stock market. उसमें हम standard deviation, correlation, regression, ये सब चीजें कंप्यूट करते हैं and we try to understand through that. then फिर इसके बाद में हमारी वेरियस थियरीज हैं फॉर स्टॉक मार्केट मूवमेंट. डाउ जोन थियरी है. ठीक है. फिर बहुत सारी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, बहुत सारे हमारे अलग अलग थियरीज हैं, मॉडल्स हैं टू एनालाइज द मार्केट. ठीक है. या सिक्योरिटीज. देन सो अब यहाँ पे यही सब CAPM, APM, इनको हम डीप में डिस्कस करेंगे जब ये सेगमेंट आएगा. उस चीज को
अंडरस्टैंड करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, क्या टेक्निक्स हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू शो यू लाइव ट्रेडिंग ऑल्सो। हम यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी कोशिश करेंगे। एंड जिनके लिए, क्योंकि अब मार्केट 9:15 to 3:30 के बीच में रहता है, तो वो सेगमेंट उसी टाइम पे रहेगा। आई विल शो हाउ टू ट्रेड लाइव, एंड एट दैट टाइम जिनको पॉसिबल होगा दे कैन ज्वाइन लाइव, और अदरवाइज फिर वो रिकॉर्डेड तो बाकी लोगों को मिल ही जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर दिस वी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे, स्टॉक मार्केट इट कुड बी रिवॉर्डिंग। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस एटसेट्रा, ये सब चीजें हम जब पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। अब आई कांट मेक यू मास्टर ऑफ द स्टॉक मार्केट, बट हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं एंड इट कुड बी रिवॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर हम छोटी सी चीजें देखें इसमें, आई जस्ट शो कि वो कितना प्रॉफिट मैं अपने ही ट्रेडिंग अकाउंट से, मैं आई जस्ट शो कि वो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक डेरिवेटिव है, निफ्टी है एक हमारा नॉर्मल निफ्टी है। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन 50 स्टॉक्स। इसी तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स को लेके भी एक निफ्टी बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द बैंक निफ्टी। ठीक है, एंड आई एम जस्ट शोइंग ये ट्रेडिंग के इंट्राडे के प्रॉफिट है। ठीक है, ये 16 लॉट्स खरीदे, ये मार्च का है। ठीक है, उसी दिन खरीदा और उसी दिन बेच दिया। देन ये एक दिन का प्रॉफिट है, ये सब इंट्राडे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, कैन मेक मनी, पॉसिबल है। थोड़ा मैं सिखाऊंगा, थोड़ा खुद को ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें, सब चीजें एक साथ में नहीं आ जाती, बट हाँ काफी कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, सो ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी ठीक है, कोशिश करेंगे जितना मैं दे सकता हूं उतना कोशिश करेंगे हम। सो जो हमारा सेक्शन डी है, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर ऑल्सो, कि जो रिस्क मैनेजमेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, very important area of specialization. So how it works? Look, financial risk management में पहली चीज है understanding the risk, second is computing the risk, and third is managing the risk. ठीक है, so जो हम रिस्क की कंप्यूटेशन है तो पिछले सेगमेंट से ही शुरू हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ही शुरू हो गया था, वहीं से हम रिस्क कंप्यूट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी सीख लेते हैं। बट हियर कम्स वन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजिंग द रिस्क, दीज आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स। सो जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव जो इनको स्टॉक मार्केट में दिस इज वी कॉल एज द F&O सेगमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। ठीक है, सो जो F&O सेगमेंट है, दैट इज वेरी बिग एरिया। मतलब जो स्टॉक मार्केट में जो हमारा टोटल ट्रेडिंग होता है, कितना होता होगा ट्रेडिंग? इट इज अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ के आसपास पर डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। मतलब दैट इज देयर, कभी कम थोड़ा सा ज्यादा, दैट वेरीज। ठीक है, एक दिन का सिंगल डे ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड वाइड इट इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे। ठीक है, सो जो स्टॉक मार्केट में हमारे सेगमेंट्स हैं वो है, एक है कैश सेगमेंट्स, दूसरा कहलाता है F&O सेगमेंट, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दैट इज डेरिवेटिव सेगमेंट, थर्ड है डेट सेगमेंट। ठीक है, अभी इंडिया में अभी रिफॉर्म्स शुरू, RBI ने अभी प्रोसेस स्टार्ट करा है।
अभी तक जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, they are not allowed directly to participate in government securities. डायरेक्टली अभी तक अलाउड नहीं है, बट आरबीआई की जो अभी पॉलिसी आई थी, आई थिंक इसी ईयर में आई है, एंड दे हैव सेड कि दे आर प्लानिंग, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, these are called as retail investors, will be allowed to participate in the debt government securities directly. अभी हमारे को किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के थ्रू ही ट्रांजैक्शन लाइक म्यूचुअल फंड, डेट फंड्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, हम उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली अभी तक हमारे को वो चीज परमिटेड नहीं है, ठीक है। देन अब मीन्स जो हमारे जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें जो हमारे कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, व्हाट दीज कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, फॉरवर्ड्स, स्वैप ऑप्शंस, ठीक है। सो ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, these are called as the derivative instruments, ठीक है। सो वहाँ पे हमारे लिए जो दिक्कत आ जाती है उसमें what we are having, कि इनको अलग अलग समझेंगे थोड़ा डिटेल, हम उसको कुछ कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, डेट डेरिवेटिव्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में उन चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मैंने उनको सेग्रीगेट किया हुआ है, डेट हम अलग पढ़ेंगे, डेट डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके साथ में आता है, जब हमारा इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे भी रिस्क है, उनको भी मैनेज करने के लिए फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो करेंसी से रिलेटेड जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम अलग पढ़ेंगे, उनको हम फॉरेक्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे, वो इसी सेगमेंट में वो चीज़ें हैं, ठीक है। देन सो जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं वहाँ पे भी फॉरेन करेंसी के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसी तरीके से हमारे वहाँ पे स्वैप्स भी हैं, ठीक है, करेंसी स्वैप, इंटरनेशनल करेंसी स्वैप्स, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक डेट मार्केट है, डेट मार्केट जो हमारे मार्केट्स है उसमें कैश मार्केट सबसे छोटा मार्केट है, फिर एफ एंड है उससे बड़ा है, फिर करेंसी मार्केट है, फिर उसके बाद में आता है डेट मार्केट, जो सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है वो है डेट मार्केट, जिसका वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी ह्यूज, ठीक है। वो हमारे को बहुत डिटेल में नहीं है बट है। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि ये इस सब्जेक्ट के साथ में एक्चुअल में क्या है, एसएफएम के साथ में, कि हम जो भी इसमें टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो सब अपने आप में एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है, अपने आप में कोर्सेज हैं वो, सो बहुत वास्ट है। दिस इज वन डिफिकल्टी, थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट वो हम करेंगे। हमारे को इंस्टीट्यूट ने सिलेबस डिसाइड करके दिया है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि हम यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं इसमें हम इक्विटी या कैश मार्केट में स्पेशलाइज कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव मार्केट में स्पेशलाइज कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव मार्केट में स्पेशलाइज कर सकते हैं, हम कमोडिटी मार्केट में स्पेशलाइज कर सकते हैं, हम करेंसी मार्केट में स्पेशलाइज कर सकते हैं, हम डेट मार्केट में स्पेशलाइज कर सकते हैं। हम सब में एक साथ में होना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जो लोग करते हैं वो सब जगह हाथ पैर डाल के कहीं कुछ होता नहीं है उनका, इज इट क्लियर, ठीक है। बट लेट इट बी, whatever the things we have got here in this case, यहाँ पे हमें जो चीज समझनी है कि सब्जेक्ट वास्ट है बट हमारा सिलेबस अनलिमिटेड नहीं है, हमारे कंटेंट्स लिमिटेड हैं, सो हमें उसी हिसाब से उस चीज को प्लान करके चलना है। एंड एग्जाम्शन लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पीपल से दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट व्हाट आई से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। We are getting 60, even 80, even 90 is not very difficult. Just preparation should be in right direction. ठीक है,
देन अब हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क, हमने रिस्क बहुत जगह डिस्कस किया। जो फाइनेंशियल रिस्क है, अब उसमें अलग अलग तरीके की रिस्क होती हैं, कि अलग टाइप की रिस्क होती हैं। लाइक क्रेडिट रिस्क है, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क है। क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई, एक कंपनी की AAA रेटिंग थी बट अब वो रेटिंग BB चली गई, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ जाता है। जो बैंक्स हैं वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, वो जब बॉन्ड्स इश्यू करने जाते हैं मार्केट में तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली देयर इज लिक्विडिटी रिस्क। कैसा हो सकता है कि एक कंपनी है, कंपनी के पास पैसा है, दे आर हैविंग एसेट्स बट लिक्विड एसेट्स नहीं है। मेरे को अपने वेंडर को पेमेंट करना है 1 हफ्ते बाद, मेरे पास पैसा है, आएगा बट 2 महीने बाद आ रहा है। अब मेरा वेंडर तो चिल्लाएगा ना, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया 1 हफ्ते बाद आना, उसके बाद बोल रहा हूँ नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, 10 दिन बाद आओ, देखते हैं कुछ मैनेज करते हैं। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं नहीं अभी अगले महीने ही आ जाओ, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत अराइज हुई, there's issue here. So what happens in all these situations कि यहाँ पे जो हमें जो ये जो रिस्क है कि पैसा है, यू आर नॉट इनसॉल्वेंट बट लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। पैसा आज चाहिए, आज नहीं है, कल है या परसों है। Is this point clear? So this risk is called as the liquidity risk. Then there are asset based risk. एसेट से रिलेटेड भी रिस्क होते हैं, कुछ एसेट्स रिस्की होते हैं, कुछ कम रिस्की होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। देन वी आर हैविंग ऑपरेशनल रिस्क। इफ यू रिकॉल, हमने इंटरमीडिएट में ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ा था। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल, ये किसको रिप्रेजेंट करता था? ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेशनल रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल रिस्क। प्राइमरीली जब बिजनेस रन करते हो तो उससे रिलेटेड 2 रिस्क होते हैं। अभी वो बहुत छोटा था, इंटरमीडिएट में बहुत छोटे लेवल पे, अब हम जब पढ़ रहे हैं बहुत हायर लेवल पर रिस्क बहुत तरीके की होती है। पूरा पूरा कोर्स है, FRM का जो कोर्स है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, वन ऑफ द कोर्स विच इज मच इन डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड में, डिफिकल्ट भी है, ठीक है। सो व्हाट इज हियर कि अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि जो रिस्क है बहुत तरीके की होती हैं, तो जो ऑपरेशनल रिस्क है बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। मोस्टली जो ऑपरेशनल रिस्क आती है या कोई भी रिस्क, मतलब बिजनेस में जो रिस्क है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से होती है। सपोज मेरे को रेंट पे करना है 1 लाख रुपीस, अब मेरे को कम से कम 1 लाख रुपए तो कमाना पड़ेगा ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो ये जो रिस्क हुई, 1 लाख रुपए अगर नहीं कमाया तो लॉस में, ये कौन से रिस्क है? ऑपरेशनल रिस्क है। इसी तरीके से और भी दूसरे, ये तो रेंट की बात करी बहुत सिंपल टर्म्स में, विल बी डिस्कसिंग कि कैसे ये ऑपरेशनल रिस्क को हम क्या क्या होती हैं, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क या फॉरेन मार्केट से रिलेटेड रिस्क। कहीं हम बाहर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करा, चाइना में इन्वेस्टमेंट करा, अब चाइना इंडिया के बीच में वॉर हो गई, उन्होंने हमारे सारे एसेट सीज कर लिए, हो सकता है। ये पॉलिटिकल रिस्क है। दिस पॉइंट क्लियर? ऐसे ही जब हम दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे एक इन्फ्लेशन की भी बड़ी रिस्क होती है कि वहां की करेंसी डिवैल्यू हो गई। जिम्बाब्वे में इन्वेस्ट किया, वहां इन्फ्लेशन रेट चला गया 500-600%, करेंसी डिवैल्यू हो गई। हमने जितना पैसा लगाया था उससे ज्यादा निकाल के लेके आए, बट जब हमने उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट किया तो कुछ नहीं मिला, लॉस में चले गए। ये चीजें हम समझेंगे, पढ़ेंगे। सो दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब हम बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, दोस्त मतलब एक बार चीजें समझनी शुरू होंगी तो इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो तुम्हारे को समझ में आए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे
जो हमारे हमने बात करी थी कि जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करे गए थे, वो थे डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो डेरिवेटिव्स मैंने बार बार रिपीट किया, तो इसमें फॉरवर्ड हो गए, फ्यूचर्स फॉरवर्ड, फ्यूचर्स ऑप्शंस, स्वैप, स्वैप ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू टुडे फॉर सेटलमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट। आज कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट में होना है। मैंने लोग क्या हो सकता है, सपोज कोई भी चीज है, से ये पेन है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, शॉप पे जाता हूँ, उसको सपोज 100 रुपीज का पेन है, 100 रुपीज दिए, खरीद लिया, ये क्या हो गया? कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा, मेरे को ये पेन खरीदना, पर आज नहीं खरीदना, आज से 1 महीने बाद खरीदना, बट मेरे को लगता है कि आज से 1 महीने बाद इस पेन की कीमत 100 रुपीज की जगह 150 रुपीज हो जाएगी। अब मुझे लगता है तो शायद उसको भी लगता हो, शॉपकीपर को, कि महंगा हो जाएगा। तो मैं उसके पास जाता हूँ कि मेरे को पेन खरीदना है, बोला 100 रुपए में मिल रहा है, ले लो। तो बोला आज नहीं खरीदना, मेरे को 1 महीने बाद खरीदना। बोलता है 1 महीने बाद आ जाओ, 2 भाव रहेगा उस पर खरीद लेना। नहीं नहीं, एक काम करो, हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि तुम मेरे को ये पेन आज से 1 महीने बाद बेचोगे। ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ एक काम करो, कितने का पेन है? 100 रुपए का पेन है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 महीने बाद तुम 100 रुपए का बेचोगे। नहीं नहीं नहीं, आज का ठीक है, आज 100 रुपए में खरीद रहे हो, आज से 1 महीने बाद तो शायद इसका भाव बढ़ जाएगा। उसको लगता है कि 5-10 रुपए से बढ़ेगा, मेरे को लगता है 50 रुपए से बढ़ेगा। वो बोलता है कि एक काम करो, 110 रुपए में इसको खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज वी कॉल एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने लगते हैं तो हम उनको बोलते हैं फ्यूचर्स। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होती है। मेरे पास में खरीदने का राइट है, बट खरीदने की ऑब्लिगेशन भी है, मेरी मजबूरी है, मेरे को 110 पे 1 महीने बाद वो पेन खरीदना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है। ठीक, बस छोटा एग्जांपल लिया, बड़े एग्जांपल्स में जहां लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होंगे तो केस भी होते हैं, सूट फाइल होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब यहां पे तो अब इसमें क्या हुआ कि राइट भी है, खरीदने का राइट है और खरीदने की ऑब्लिगेशन भी है। इसी के एडवांस इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो कहलाते हैं ऑप्शंस। ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हारे को दिखाए थे वो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस थे। ठीक है, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, 2 तरीके, खरीदने का राइट कॉल ऑप्शन, बेचने का राइट पुट ऑप्शन। ऑप्शंस में यू आर हैविंग राइट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। Is it clear? You are having right without any obligation, that is we call as the option. Is this point clear? Then अब इसके ही और इंस्ट्रूमेंट जब करेंसी से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, फिर वहां पे आ जाते हैं एक नए तरीके के डेरिवेटिव्स, दीज आर कॉल्ड एज स्वैप्स। फिर वहीं पे स्वैप ऑप्शंस, वो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, उसको मैं अभी उस पे डीप में या उसको डिस्कशन में अभी नहीं लेके आ रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, जैसे हमारे सिक्योरिटी, करेंसी, मतलब ये जो फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस हैं, ये सिक्योरिटीज के हो सकते हैं, कमोडिटी के हो सकते हैं, करेंसी के हो सकते हैं। हम इनको तीनों को अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मतलब मैं उनको 3 अलग अलग चैप्टर्स बना के पढ़ाऊंगा। ठीक, हमारे मॉड्यूल में कैसे भी दिया हुआ है, बट मैं उनको 3 अलग अलग, क्योंकि वो सेगमेंट वाइज करना पड़ेगा बेटर समझने के लिए। देन जब सो ये क्या हो गया, इसी तरीके से जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है और करेंसी है, सो सिक्योरिटी, कमोडिटी और करेंसी में फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस होते हैं तीनों में, बट करेंसी और डेट मार्केट में फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस, स्वैप्स एंड स्वैप ऑप्शंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है स्वैप ऑप्शंस, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, पूरा एक लेक्चर मेरे को 1 से 2 लेक्चर्स मेरे को सिर्फ स्वैप ऑप्शन समझाने में जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बट समझ में आता है, एक बार वो बेसिक क्रक्स समझ में आ गया तो वो मैनेज हो जाती हैं चीजें। ठीक है, सो ये जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स,
सो करेंसी, सॉरी सिक्योरिटी, कमोडिटी, करेंसी, डेट हो गया। डेट की जब बात आती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट आता है। तो इंटरेस्ट रेट के भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वहां पे भी कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। नाम बदल जाते हैं, कैप्स, कॉलर्स, ठीक है, वो नाम बदलते हैं उनको, बट वो कॉल पुट ही होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस, स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ेंगे तो उसके साथ में मैं तुम्हारे को इन चीजों की ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। लाइव मार्केट में हो पाएगा तो लाइव मार्केट में करेंगे, एक्चुअल ट्रेड करके मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में नेक्स्ट इसी सेगमेंट में वी आर हैविंग फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस। वो सोर्सेज ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी कहाँ कहाँ से मिल सकती है, फॉरेन कंट्री से लोन ले लो, फॉरेन बैंक से लोन ले लो, डॉलर में लोन ले लो, फिर एडीआर, जीडीआर, यूरो बॉन्ड, बहुत तरीके के वो हैं, ये थियोरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये करेंसी वाला जो सेगमेंट है दैट इज एक्चुअली जो करेंसी ट्रेडिंग या करेंसी मैनेजमेंट, ये भी अपने आप में एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। देन फिर एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। सो वो उसमें कुछ चीजें वहां पढ़ेंगे, कुछ चीजें यहाँ पढ़ेंगे, तो इससे हम हमारे को आपस में यहाँ पे क्या है, चैप्टर्स में इंटरलिंकिंग है। तुम्हारे को उसके लिए एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे में उस चीज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ सो इसमें हमारी अप्रोच कैसी रहेगी, आई जस्ट कम टू दैट। तो हमारा एसएफएम जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर है। अब इस 100 मार्क्स में व्हाट इज हियर कि जो हमारा पेपर है अराउंड 20 to 30 मार्क्स, डिपेंड कि हम कैसे ऑप्शंस चूज करते हैं, ठीक है, वो थियरी है। एंड 70 to 80 मार्क्स प्रैक्टिकल्स है, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें, ठीक है। वैसे तो पूरा ही हम बोल सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल ही है, बट फिर भी इसमें जो ओवरऑल जो है थियरी, अब इसमें कुछ चैप्टर्स हमारे प्योर थियरी के हैं, वहां से भी थियरी आ सकती है, और प्रैक्टिकल जो हमारे चैप्टर्स हैं उनसे भी थियरी आ जाती है, ठीक है। देन अब इसमें हमारा जो हम कैसे तैयारी करेंगे इसको पढ़ने के, जो चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे, तो फर्स्ट जो करेंगे वो करेंगे हम बेसिक रिवीजन। जो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, ठीक है, दिस इज रिवीजन ऑफ बेसिक एफएम। सब नहीं करेंगे, हमारे लिए जितना रिलेवेंट है उतना ही करेंगे, ठीक है। इसमें मैं तुम्हारे को कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड थोड़ा सा डिविडेंड पॉलिसी भी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। ये हम इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इसका इंपॉर्टेंस है आगे के जो हमारा पोर्शन समझने के लिए, उसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो वहां के लिए जरूरत है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, एक बार करके लेंगे उसमें रिवीजन, ठीक है। देन वंस दिस इज डन, एक बार यहाँ पे होता है, देन हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट्स मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुरुआत में नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी करेंगे।
तो उसके लिए फॉरेक्स की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब मैं तुम्हारे को वो फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आएंगे। मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से शुरुआत नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसके लिए लगती हैं, वो सब पढ़ने के बाद में देन वी विल प्रोसीड, वी विल कम टू दैट। तो हमारे को वहां दिक्कत कम होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से शुरुआत करते हैं, ठीक, एज देयर चॉइस, बट इन माय ओपिनियन इसको मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ाता हूँ, बाकी चैप्टर्स करने के बाद में, ताकि हमारे को बहुत सारी बेसिक चीजें समझ में आ जाती हैं। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक क्वेश्चन तो रहता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन तो रहते ही है। सो वो जब तक उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि इसका अनलिमिटेड स्कोप है इस चैप्टर का, याद करके बहुत फायदा होता नहीं है, समझना पड़ता है, तो उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स, इसमें हम पहले इससे जो थियरी वाला जो पोर्शन है वो कर लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट कैपिटल मार्केट्स पे। कैपिटल मार्केट्स में जब व्हेन वी विल एंटर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैश मार्केट। व्हाट इज कैश मार्केट? वेयर दिस इज द मार्केट वेयर द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर कैश, ठीक है। सो दिस इज वी कॉल एज द कैपिटल मार्केट, ठीक, सॉरी कैश मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट में तो कैश मार्केट है, F&O है, ठीक है। सो उसमें से जब हम शुरुआत करेंगे तो कैश मार्केट पढ़ेंगे। देन आफ्टर दिस, इसके बाद में जो हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे दैट विल बी कैपिटल मार्केट्स का ही एक्चुअल में पार्ट है, बट इसमें हम एज अ सेपरेट चैप्टर वी विल बी टेकिंग म्यूचुअल फंड्स, हम म्यूचुअल फंड्स लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दिस विल बी हैविंग डेरिवेटिव्स। इस डेरिवेटिव्स मतलब ये वाला जो चैप्टर है, इसमें हम सिक्योरिटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, किसके बारे में? सिक्योरिटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सिक्योरिटी डेरिवेटिव का जो F&O सेगमेंट वाला जो मार्केट है वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कमोडिटी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डूइंग, ठीक है। देन वंस दिस इज डन, देन वी विल बी डूइंग द फॉरेक्स, दैट इज इंटरनेशनल करेंसी मार्केट। Now, what we are going to have, look, अभी मैं बताता हूँ कि ये यही सीक्वेंस मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि एक के बाद में चीजें लिंक होंगी एक दूसरे से, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल करेंसी मार्केट है। इसमें जब हम यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, और कई बार बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी पूछ ले जाते हैं, डिपेंड्स ये तैयारी कैसी है। देन आफ्टर दिस we will be doing investment decisions एंड इसी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमारे लीजिंग भी हम पढ़ेंगे, एज ए सेपरेट चैप्टर पढ़ लेंगे, या मतलब एक्चुअल में कंसेप्ट एक ही जैसा है। नाउ व्हाई आई एम कीपिंग दिस सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। हम शुरुआत में पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट का रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, जितनी हमारे को जरूरत है, पूरा नहीं, जितनी जरूरत है उतना हम रिवीजन करके लेंगे। फिर उसके बाद में हम फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी उससे रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर हम अपना कैश मार्केट पे आ जाएंगे, वहाँ पे हम कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट, कैसे कैपिटल मार्केट थ्योरीज, ये सब करेंगे, ये चीजें डिस्कस होती जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे स्टैंडर्ड रिस्क एक्सेट्रा कंप्यूट करना भी सीख जाएंगे। फिर कैपिटल मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो या तो खुद से कर सकते हैं या फिर हम किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, तो हम म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे, ठीक है। देन कैपिटल मार्केट में ही एक सेगमेंट है दैट इज F&O या डेरिवेटिव सेगमेंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम शुरुआत में कमोडिटी
एंड सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, कमोडिटी एंड सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। एंड वंस वी डू दैट तो हमारे को डेरिवेटिव्स का बेसिक टू एडवांस सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ हम यहाँ पे अभी करेंसी एंड डेट के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो उसके बाद में एक और हमारा चैप्टर आएगा, दैट इज बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड और डेट मार्केट, ठीक है। सो व्हाट इज हियर कि अब यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव्स पढ़ लिए तो हमने किसके, सिक्योरिटी के डेरिवेटिव और कमोडिटी के डेरिवेटिव, बट अभी करेंसी के डेरिवेटिव नहीं पढ़े क्योंकि हमारे को करेंसी का बेसिक आइडिया नहीं था। तो हम इसके बाद में फॉरेक्स में, इंटरनेशनल करेंसी मैनेजमेंट में हम करेंसी के बारे में सीखेंगे, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन करेंसीज, उनकी ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे उनके रेट्स दिए जाते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे। वंस वी डू दैट, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आएंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो जो रिस्क वाला पार्ट है हम सब सिग्निफिकेंटली पढ़ चुके हैं, तो हमारे को प्रोजेक्ट की रिस्क भी समझ में आएगी, उसको मैनेज करना भी समझ में आएगा, उसके मेथड समझ में आएंगे, इजीली समझ में आएंगे। वो पहले भी आ सकते थे बट उसमें बहुत सारी चीजें बहुत सारे लेवल पे सिखानी पड़ती हैं, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे पहुंचते तक सीख चुके होंगे। एंड देन वी विल बी हैविंग बॉन्ड और डेट मार्केट। इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, स्वैप ऑप्शंस, ये सब कवर हो जाएगा, सारी की सारी चीजें कवर होंगी इसमें, ठीक है। सो ये सब मिला के ये हमारे को इसमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 months का टाइम लगता है। वेरी कर जाता है समटाइम्स। इफ आई फील कि स्टूडेंट्स को कुछ डिफिकल्टी हो रही है, सो मैं रुक के फिर वापस से एक्सप्लेन करके आए, वी ट्राई टू मैनेज द थिंग्स, ताकि अब क्योंकि स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द केसेस अब सामने नहीं है, सो उस तरीके से समझाना पड़ता है कि कम से कम दिक्कत हो, ठीक है। नाउ हियर इसमें हम कैसा रखेंगे, तो अभी कल से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं बेसिक्स का रिवीजन शुरू करूंगा। अभी शुरुआत में 2-3 दिन हम यूट्यूब पे लाइव ही रखेंगे, यूट्यूब पे रखेंगे, एंड देन वी विल स्विच टू द ऐप। कई बार क्योंकि यूट्यूब लाइव में कई बार थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, सो हम अपनी ऐप पे स्विच करेंगे। एंड फिर उसमें क्या होगा कि जो चैट्स, मैसेजिंग, वो कन्वीनियंट है, रिलेटिवली इजी है, एंड विल मैनेज, उसको करेंगे। बट अभी नेक्स्ट 2 to 3 days आई विल बी ऑन यूट्यूब, यहीं पे रखेंगे। और ये लेक्चर्स अब इसके बाद में इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी, कुछ इश्यूज थे, नेट का इशू था, देन यू कैन वॉच इट अगेन, उस पे यूट्यूब पे रहेगा इस लेक्चर को, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।